Assalamu alaikum everyone. So today the topic is what is reading fluency and how a teacher can develop reading fluency in students, especially in second language learners. So a good analogy for understanding reading fluency comes from public speaking. So in a good public speaker, there are certain qualities which make that person a good public speaker. Similarly, there are certain qualities which make a reader a good and fluent reader. So वो कौन सी qualities हैं in the public speakers which make them easy to listen to? तो वो यहाँ दी हुई है. Accuracy in speech, appropriate speed, phrasing, expression. Accuracy in speech, speech उनकी accurate होनी चाहिए, to the point होनी चाहिए और जो कहने की ज़रूरत है वो कहना चाहिए. Appropriate speed, ना ही बहुत तेज़ ना ही बहुत slow, इतनी speed के जो समझ आए. Phrasing, लफ्ज़ों का इंतखाब, word choices, and expression, correct intonation, आवाज़ का उतार चढ़ाव. All of these combine to make a public speaker a good public speaker. The speaker's use of these aspects of fluency facilitates, they help the listener's comprehension. ठीक है? Speaking in appropriate phrases, मुनासिब phrases. बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, simple बना दें. बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, आप complex चीज़ों की बात कर सकते हैं. Emphasizing certain points, stress देना. किस चीज़ पे भी मैंने important करना है. जिस तरह मैंने अभी कहा, stress देना. ये नहीं कि stress देना को नहीं prominent किया, stress को prominent किया है. तो इससे क्या पता चलता है कि आपने किस सुनने वाले को समझ आती है कि किस लफ्ज पे ध्यान देना है. रेजिंग एंड लोअरिंग द वॉल्यूम, अपनी आवाज का उतार चढ़ाव मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना जहां जरूरत है. एंड वेरिंग इंटोनेशन, और इंटोनेशन अगेन आप जिस तरह की टोन यूज कर रहे हैं उसको भी आप बदल लें. कोई क्वेश्चन है, टोन डिफरेंट होगी. कोई सैड बात है, टोन डिफरेंट होगी. एक्साइटमेंट है, टोन डिफरेंट होगी. इसके जरिए आप लिसनर को बता सकते हैं कि आपका मकसद क्या है. Contrast a fluent speaker with one who is less fluent. तो less fluent वालों में क्या है? Anxious about speaking. तो जिस तरह बोलने में anxiousness है, anxiety है, उस तरह से reading में भी anxiety है. And renders the presentation in a slow word by word monotone. जिस तरह आप शुरू की अपनी presentation सोचें, आप कैसे slides पढ़ते हैं? Renders a presentation in a slow word by word monotone. इस तरह कोई पढ़े उसकी कम समझ आएगी और जिस तरह बात करते हैं उस तरह ज़्यादा समझ आएगी. This less fluent speaker makes it considerably more difficult for listeners to comprehend the presentation. They have fewer verbal cues to use and will have to listen more closely and intensely to make sense of the speech. अब ऐसे जो less fluent speakers हैं या readers हैं, उनको समझने के लिए हमारे पास निशानी या cues कम होंगी और हमें खुद से अपना ज़्यादा ध्यान लगा के बात समझनी पड़ेगी. ठीक है? So how to instructional strategies जो हैं to develop fluency in readers, वो क्या हैं? हम उसकी बात करेंगे कि model fluent reading. In order to read fluently, students must first hear and understand what fluent reading sounds like. From there, they will be more likely to transfer those experiences into their own reading. The most powerful way for you to help your students is to read aloud to them often and with great expression. Choose selections carefully. Expose them to a variety of genres, including poetry, excerpts from speeches, and folk and fairy tales with rich lyrical language. Texts that will spark your students' interest and draw them in the reading experience. अब ये जिस तरह पैराग्राफ मैंने पढ़ा और अब सोचें कि आप लोगों में से कोई पढ़ रहा होता. ठीक है, कुछ लर्नर्स अच्छा पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ते हैं. तो जो नॉर्मल लेस फ्लुएंट लोग पढ़ रहे होते हैं किस तरह इसको पढ़ेंगे? इन ऑर्डर टू रीड फ्लुएंटली, स्टूडेंट्स मस्ट फर्स्ट हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट फ्लुएंट रीडिंग साउंड्स लाइक. फ्रॉम देयर दे विल बी मोर लाइकली टू ट्रांसफर दोज एक्सपीरियंसेस इनटू देयर ओन रीडिंग. द मोस्ट पावरफुल वे फॉर यू टू हेल्प योर स्टूडेंट्स इज टू रीड अलाउड टू देम ऑफन एंड विद ग्रेट एक्सप्रेशन. अब पढ़ा तो मैंने स्पीड से है, मगर मेरी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है, कोई क्यू नहीं है. जहां रुकना था मैं रुकी नहीं, जहां एक्सप्रेशन देना था मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिया. और अब इसी वीडियो को रिवर्स करके आप पहले जिस तरह से मैंने पैराग्राफ पढ़ा था उसको करें तो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर टीचर मॉडल के तौर पे पेश करेगी फ्लुएंट रीडिंग को तभी लर्नर्स उस स्किल को ट्रांसफर कर सकेंगे. ठीक है? After a read aloud session, ask your students, after listening to how I read, can you tell me what I did that is like what good readers do? What I did that is like what good readers do. तो कौन सी चीजें हैं
वो फिर आप सोचने का भी आपको मौका मिलेगा। अब भी आप दोबारा से इस वीडियो को पीछे करें और सुने कि मैंने पैराग्राफ कैसे पढ़ा था और बाद में जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा या जिस तरह आप पढ़ते हैं उसमें और मेरे पढ़ने में क्या डिफरेंसेस हैं और आप किस तरह से अपनी रीडिंग को फ्लुएंट बना सकते हैं। डू रिपीटेड रीडिंग्स इन क्लास। सो क्लासरूम में रिपीटिंग रीडिंग का क्या मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के सामने पेश आएंगी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उससे भी क्या होगा, प्रमोट होगी आपकी फ्लुएंसी। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, choose a short poem to read to begin with, preferably one that fits into your current unit of study, and transpose it onto an overhead transparency, यानी कि स्लाइड चला दें। स्लाइड चला के वो पोम पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ें। Read the poem aloud several times while your students listen. Then take a moment to discuss your reading behavior such as phrasing, rate and intonation. एक आपने पोम पढ़ी, कहाँ पे आपने लफ्जों को जल्दी पढ़ा, कहाँ आवाज ऊपर हुई, कहाँ नीचे हुई, आपका रेट क्या था। बाज दफा आप करते हैं जैसे आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम पढ़ते हैं, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितने वर्ड्स हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 4 वर्ड्स हैं। और आप एक महदूद टाइम में, एक महदूद जो है आपने रिदम में इसको पढ़ा। अब दूसरी लाइन क्या है? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, कितने वर्ड्स हैं? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, 6 वर्ड्स हो गए। आपने रिदम वही रखा मगर लफ्जों का रेट बढ़ गया। 6 लफ्ज आपने 4 लफ्जों की स्पीड में पढ़े, तो ये रेट होता है, ठीक है। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, इसमें कितने? अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अगेन 6। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, अगेन 6। फर्स्ट में आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है तो आपने अपना रेट स्लो कर लिया कि 4 वर्ड्स भी 6 की स्पीड पे आए, फिर बाकी में 6 थे। तो आप अपनी रिदम के साथ जिस तरह से अपने लफ्जों को जल्दी जल्दी अदा करते हैं या स्लो, वो रेट होता है। इंटोनेशन, अगेन किसको आपने जोर देना है, स्ट्रेस देना है, किस पे नहीं जोर देना, ठीक है। फिर ये सब शेयर करने के बाद जब आपने पोएम पढ़ी, फिर आप आस्क योर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन एन एको रीडिंग। आपके पीछे पीछे पढ़ें वो, फिर कोरल रीडिंग सब इकट्ठे पढ़ें। हमने कोरल वो भी पढ़ी हैं, ड्रिल्स की बात की है। सो ड्रिल्स में क्या होता है, फायदा क्या होता है कोरल रीडिंग का, एको रीडिंग का? As such, they may be less apprehensive. कौन they? The students may be less apprehensive, या डरेंगे कम about making a mistake because they're a part of a community of readers. सबके साथ मिलके उनकी गलती छुप जाएगी और वो अपनी गलतियों को खुद ही से करेक्ट कर लेंगे। अगर अकेले खड़े करके उनको आप कहेंगे कि पढ़ें तो वो थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर प्रमोट फ्रेज रीडिंग इन क्लासेस। फ्रेज रीडिंग क्या होती है कि आप पूरी फ्रेजेस पढ़ते हैं, अलग अलग वर्ड्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। Reading phrases seamlessly as opposed to word by word. To help students read phrases better, begin with a terrific poem. Two of my students' favorites are, ये जिसने लिखा उन्होंने कहा है Something Told the Wild Geese and Noodles. ये 2 resources कहीं है। उन्होंने करना क्या है? After selecting a poem, write its line onto sentence strips. Different pieces of papers पे उनकी आप lines लिख दें, which serve as cue cards to show students how good readers cluster portion of text rather than saying each word separately. तो जो वर्ड्स इकट्ठे जाते हैं ना, जैसे आप कहते हैं फॉर इंस्टेंस को आप हमेशा से इकट्ठा कहें, फॉर एग्जाम्पल हमेशा इकट्ठा कहेंगे आप, ये नहीं कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, नहीं। अगर आप कहेंगे गुड मॉर्निंग तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, इकट्ठी फ्रेज बोलेंगे, आप ये नहीं कहेंगे गुड मॉर्निंग। तो आप पोएम में भी इस तरह करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब लिटिल स्टार को इकट्ठा बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नहीं। फिर हाउ आई वंडर को इकट्ठा करेंगे, व्हाट यू आर को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से फ्रेजेस में आप चीज को पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर देंगे। Hold up strips one at a time and have students read the phrases together. Reinforce phrase reading by using the same poem in guided reading and pointing to passages you read as a class. Okay? या आप उनसे गाइडेड रीडिंग भी जब उनको करवाएं अपने साथ साथ, जिस तरह से ऊपर भी उन्होंने बात की कि आप पहले एको रीडिंग करें, कोरल रीडिंग करें, उनको गाइड करके रीड करवाएं, उसमें आप फिर फ्रेजेस को पॉइंट आउट करें और इकट्ठा पढ़ने की, वर्ड को अलग अलग नहीं बल्कि फ्रेजेस के तौर पर पढ़ने की उनको प्रैक्टिस करवाएं। ओके, अब यहाँ पे ट्यूटर्स टू हेल्प आउट आप लिस्ट उनको कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट आपको सपोर्ट के तौर पे अगर कोई साथ इंस्ट्रक्शनल एड्स हों, पेरेंट हों, ओल्डर स्टूडेंट्स हों, वो हेल्प कर सकते हैं रीडर्स की रीडिंग को बेहतर करने में। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देंगे। और फिर ज़्यादा स्टूडेंट, अब एक टीचर जो है वो क्लास ऑफ 20 को इतनी तवज्जो नहीं दे सकेगी। अगर 2-3 ट्यूटर्स उनके सामने हों और हर एक के पास 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स हों, तो वो 5-6 स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा फीडबैक भी दे सकेंगे। और द सेशन कैन बी शॉर्ट, 15 मिनट्स एट मोस्ट, मगर टीचर्स के साथ साथ आप प्लानिंग करें जो भी आपने करना है,
और फिर जो खासतौर पर नॉन फ्लुएंट रीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा मेहनत करें. ट्राई अ रीडर्स थिएटर इन क्लास. तो रीडर्स थिएटर में क्या होता है, आप जिस तरह से प्ले करते हैं वो आप क्लास में करते हैं, ठीक है. बिकॉज रीडर्स थिएटर इज एन ओरल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्क्रिप्ट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ways to promote fluency. अब इसमें कोई भी आप प्ले उठा लें, बाकी चीजें आप छोड़ देंगे. स्टेज प्रोडक्शन क्या है, आपने अपनी आवाज से उस प्ले के सारे कैरेक्टर्स के, भी तुम ए बन जाओ, तुम बी बन जाओ, तुम सी बन जाओ, इसको हम पूरे को पढ़ेंगे. In the exercise, meaning is conveyed through expression and intonation. For instance, किसी ने कहा है कि जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया, तो उठ के एक्चुअली जाएंगे नहीं, बस अपनी आवाज से जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है. जैसे आपने देखा ना बच्चों की स्टोरीज की ऑडियोज होती हैं, उस पे इस तरह से वो बात करते हैं. Getting started is easy. Simply give each student a copy of the script and read it out loud as you would any other piece of literature. ठीक है. अच्छा, अब script resources उन्होंने ये थोड़ी सी नीचे दी हैं. For the presentation, have readers stand or sit on stools in front of the room and face the audience, ताकि उनकी झिझक भी कम हो, audience को face करें, self-conscious ना हो. Position them in order of each character's importance. Encourage students to make eye contact with the audience. So presentation में भी आप कई दफ़ा ये करते हैं, या तो सिर्फ टीचर को देख रहे होते हैं, slides को देख रहे होते हैं. So it is important to make eye contact with the audience, ताकि जो audience आपकी बात सुन भी रहे हैं और आपके कहने पे कुछ पढ़ भी रहे हैं, उनको आपके साथ connected feel करें, उनको लगे कि हाँ ये important बात है. Once they start, they should hold their scripts at chest level to avoid hiding their faces and look out at the audience periodically. ये नहीं कि बिल्कुल मुंह के आगे रख के आप खड़े हो जाएं, आपका मुंह छुप जाए और फिर सेल्फ कॉन्शियस रहें, और जब अगली दफा आपके हाथ में स्क्रिप्ट ना हो आप बोल ना सकें. ठीक है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ अ रीडर्स थिएटर. तो इसमें उन्होंने ये कुछ रिसोर्स बुक्स जो हैं वो भी प्रोवाइड की हैं. नेम्स यू कैन सी देम, यू हैव द हैंडआउट्स. ओके. देन डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल and assessment activities in developing resource materials for teaching and assessing fluency in reading. तो उसमें आप brainstorm करें different teachers के साथ. What are the different strategies? और ये उन्होंने different levels दिए हैं. We can discuss these levels and strategies in class too. तो लेकिन ये कि आपको मैं इसके एक और बुक भी दूंगी, उसके साथ से उसमें भी आपने instructional strategies to develop fluency वो भी आप लोगों ने पढ़नी भी हैं और आपको task भी इसका मिलेगा. So right now what we are going to do is just read this paragraph. Fluency assessments must have some degree of reliability and validity. Users of the assessment must be assured that the results they obtain are reliable, that the results will provide consistent measures of fluency and will not vary because of imperfections in the assessment itself. So अगर आपने कोई ऐसा tool बनाया है कि आप किसी set of learners के साथ use करना चाहें उनकी फ्लुएंसी मेजर करने के लिए, तो सबके साथ जिस भी ग्रुप के साथ करें सबके रिजल्ट्स एक तरह के हों. ये नहीं कि उस टूल में कोई ऐसी खराबी हो कि कभी वो अच्छा रिजल्ट दिखा दे, कभी वो बुरा रिजल्ट दिखा दे. यूजर्स मस्ट ऑल्सो बी अश्योर्ड दैट द असेसमेंट्स आर वैलिड, यानी कि जिस चीज को असेस करना है उसी चीज को असेस किया जा रहा है. ये नहीं कि आपकी फ्लुएंसी देखनी है तो बस आपका खाली एक्सेंट ही देखा जा रहा है. ठीक है. मेजर रीडिंग फ्लुएंसी है तो रीडिंग फ्लुएंसी ही मेजर हो. The assessments themselves should resemble the ways in which reading fluency is defined. ठीक हो गया. अब ये आपकी ये मैंने रिसोर्स जहाँ से ली उसमें ये आपका जो है इम्पोर्टेंट पार्ट था. तो अब आप फ्लुएंट रीडर्स के लेवल्स अगर देख लें. Level 1 non-fluent reader reads primarily word by word. Occasional 2-word or 3-word phrases may occur, but these are infrequent or they do not preserve meaningful syntax. Level 1 reader क्या करेगा? एक एक लफ्ज पढ़ेगा, लफ्जों को जोड़ेगा नहीं, जिस तरह बोलते हैं उस तरह नहीं होगा, और कभी कभी 2-3 वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ लेगा, जैसे I am, this is, इस तरह के वर्ड्स को वो पढ़ लेंगे. मगर ये इस पैराग्राफ कैसे पढ़ेंगे? Reads primarily word by word, occasional 2-word or 3-word phrases may occur, but these are in इस तरह से पढ़ रहे हैं. ठीक है. नॉन फ्लुएंट अब लेवल 2 का रीडर क्या है? Reads primarily in 2-word phrases with some 3 or 4-word groupings. Some word by word reading may be present, और word groupings may seem awkward and unrelated to larger context. अब ये लोग जोड़ेंगे तो सही, मगर पूरे जुमले के साथ मतलब और सिंटैक्स को जोड़ नहीं सकेंगे. यानी reads primarily in 2-word phrases with some 3 or 4-word groupings. Some word by word reading may be present. इस तरह से रीडिंग कर रहा हो कोई तो समझ फिर नहीं आएगी, फ्लुएंसी फिर नहीं. फ्लुएंट रीडर क्या है? लेवल 3 reads primarily
in 3 words or 4 word phrases, और अब इसमें कहा some small groupings may be present, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला क्या है, appropriate अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं मगर little or no expressive interpretation, यानी कि जो टोन्स है, अगर क्वेश्चन है उसको उस तरह से पढ़ना, जैसा ड्रामेटिक तरीके से नहीं पढ़ना. और लेवल 4 में यही है, सम और मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज रेड विद एक्सप्रेसिव इंटोनेशन, बाकी इनकी रीडिंग जो है वो लार्जर मीनिंगफुल फ्रेज ग्रुप्स में है, सब कुछ ये ठीक है. तो ये आपका पर्पस होना चाहिए कि रीडर्स को आपने लेवल 1 से लेवल 4 तक लेके आना. सो दिस वाज द हैंडआउट लेडीज. सो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर ली. यू कैन रीड द हैंडआउट ऑन योर ओन or we can have a discussion in the WhatsApp group. But I have majorly discussed all those points. अगर ये एग्जाम में आ जाए तो you have to focus on everything I have discussed, especially जो ये instructional strategies हैं, model fluent reading or repeated readings in class, phrase reading, tutors to help out, और उसमें जो ऊपर इन्होंने ये भी कहा echo reading, choral reading, this is important. Then रीडर्स थिएटर्स आप यूज कर सकते हैं, और इसमें जो पोइट्री की बुक्स हैं, एक दो एग्जांपल्स इसकी दे दीजिएगा. सो दिस इज इनफ मटेरियल एट योर लेवल, or you can read some extra stuff about fluency in the other materials I give you. So I hope you understood this, and we can have a discussion in the WhatsApp group. Take care everyone. Assalamu alaikum.